Hello everyone, this is Ritika Bajpayee and you are watching to Ritika's Classroom. Today we are going to discuss further about the basics of ethics and fair treatment at workplace. So in the last video we have discussed about some basic terms like what is ethics and what is business ethics, the relationship between the ethical and the legal conduct. So for today our first topic is basic workplace ethics for an organization. So we will discuss कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेसिक वर्क प्लेस एथिक्स होने चाहिए. द वेरी फर्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑट टू बी सेम फॉर एवरीवन. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मुलेट हो रहे हैं बाय द एम्प्लॉयर, वो सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस की जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सारे ही एम्प्लॉयज़ पे सिमिलर लेवल पे फॉर्मुलेट होने चाहिए. There should be no discrimination on the basis of the hierarchy or there should be no favoritism, these things should not be there in practice. And the next is companies' policies need to be communicated clearly to each and everyone. So whatever the policies an organization or an employer is formulating, the very important thing is to communicate them well. अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को या जो भी गोल सेटिंग की है उन गोल्स को मीट कर पाओ, अपने टारगेट को मीट कर पाओ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने गोल सेटिंग क्या की है इसको कम्युनिकेट करो. सो द सेम केस इज हेयर. इफ़ यू वांट द एम्प्लॉयज़ टू फॉलो द कंपनी पॉलिसीज, सो दे शुड नो अबाउट द पॉलिसीज दैट व्हाट आर द कंपनी पॉलिसीज आर. सो कंपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के बाद उन्हें सारे एम्प्लॉयज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए. द नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑट टू रिस्पेक्ट इट्स एम्प्लॉयज टू एक्सपेक्ट द सेम इन रिटर्न. Like if an organization is expecting that employees will respect the organization, employees will respect their work culture, and they should develop the feeling of employee engagement. They should develop the emotional attachment with the organization. So organization should behave in the same way. इट इज़ अ सेइंग लाइक जिस तरह आप बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी तरह का बिहेवियर आपको दूसरे से भी करना चाहिए. सो ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉयज़ को ये फील कराएगी कि येस दे मैटर्स फॉर अस, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर एम्प्लॉयज़ मैटर करते हैं देन डेफिनेटली दे विल रिवॉर्ड इन द सेम वे. द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज़ टू अटेंड ऑफिस 365 days a year. So as the employees are human beings, not the machines, so they can also be bored. So organization should not expect them to be to be present all the day, all 365 days in a year. Next is give employees the space they require. A very strict and the close supervision actually sometimes reduce the productivity. आप जितना ज़्यादा क्लोज सुपरविजन रखोगे हर एक एम्प्लॉय इस चीज़ के साथ फीजिबल नहीं होता है. सम पीपल एक्चुअली रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी, दे लूज देयर मोरल व्हेन देयर इज़ वेरी क्लोज सुपरविजन फ्रॉम द एम्प्लॉयर. द नेक्स्ट इज डोंट बी टू स्ट्रिक्ट विद योर एम्प्लॉयज. लाइक द सेम I said earlier that too much supervision and too much strictness actually reduce the morale of your employee, and they don't feel like the part of organization. They feel like I am not the asset for the organization. They are just using my services and paying me for it. That's it. So the next is importance of workplace ethics. तो अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में वर्कप्लेस एथिक्स पढ़े उनका ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदा होगा वर्कप्लेस एथिक्स लाने से. द वेरी फर्स्ट इज इट क्रिएट्स द पॉजिटिव एम्बियंस एट द वर्कप्लेस. Ethical environment always create a positive ambience. Like if आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम, द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम फॉर एवरीवन, then a positive environment and the positive ambience will create at the workplace. Like employees will be very happy and they will be satisfied. Then it is written in the next point that they will feel very happy and satisfied. अब जब एम्प्लॉय को ये पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटिंग मी एज अ एसेट, आई एम आई डू हैव अ सिग्निफिकेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंस है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट हूँ,
I am contributing in the success of the organization, I am the part of organizational success, then employee will feel happy and satisfied, and they will, you know, they will enjoy coming to the work. वो काम पे आना पसंद करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में रोज आना पसंद करेंगे, rather than finding, you know, mere sources of burden to absent from the work. The next is it helps in developing employee engagement. So employee engagement की अगर हम बात करें, it is a term when the employee is also emotionally engaged with the organization. When there is a positive environment in the organization, employee is very happy and satisfied. Employee is feeling himself as a part of organizational success. Then a bond between employer and employee creates, and this bond actually helps in increasing the employee engagement. So you can see by managing the workplace ethics, we are able to get so many things done in the indirect way. The next is it enables management to treat all employees at equal and think from their perspective as well. So organization अगर ethical practices follow कर रही है, यूज़ कर रही है, तो employers भी employee के perspective से सोचने की कोशिश करेंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स तभी आते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जब दोनों अपनी साइड से अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं. बट जब ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयज़ के प्रोस्पेक्टिव से सोचेगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे कम होंगे एंड एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. एंड द लास्ट इज workplace ethics also go a long way in strengthening the bond among the employees and the most importantly their superiors. So अगर हम वर्क प्लेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अपने यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्क प्लेस एथिक्स, तो लॉन्ग पीरियड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा. उस बॉन्ड को एक एक पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी. दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए वर्क प्लेस एथिक्स एक बहुत हेल्पफुल और मेजर रोल प्ले करता है. एंड एक्चुअली इट helps the superior to coordinate with their subordinates, and it maintains a better relationship between them. So this is all about the importance of workplace ethics. Next is ethical issues in HR. अब हमने ये तो बात कर ली है कि वर्क प्लेस पे कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उनका हेल्प कितना होता है. दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. But there are some ethical issues that are faced by the HR manager or the HR personnel who is handling all the activities of the HR, and these issues can be related with the employee responsibility, cash and compensation plans, performance appraisal, privacy issues, race and disability, safety and health, employment issues, and the restructuring and layoff issues. अब HR manager जब ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ नॉट उसका इंटेंशन नहीं है कि वो कोई भी अनएथिकल काम करे या एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, एम्प्लॉयज़ को लेके जब कोई डिसीज़न ले तो कोई अनएथिकल डिसीज़न हो जाए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार HR का ही ऐसा ही इंटेंशन हो. बट सम टाइम क्या होता है, बिकॉज HR भी टॉप मैनेजमेंट के अंडर वर्क कर रहा है, ही इज़ मैनेजिंग अंडर सम ही इज़ वर्किंग अंडर समवन अंडर द मैनेजमेंट. सो टॉप मैनेजमेंट अगर एथिक्स पे बिलीव नहीं कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में चला रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा लॉस और सबसे ज़्यादा डायलेमा में जो पर्सन आता है वो है HR मैनेजर और द वन हु इज़ हैंडलिंग द HR अफेयर्स. सो द नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. सो जब हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक्टिविटी की बात करते हैं तो इक्वल एम्प्लॉयबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए. एंड वी शुड यूज़ द रेफरेंस चेकिंग फॉर्म्स वाइल एम्प्लॉइंग एनी कैंडिडेट. बट प्रॉब्लम कब अराइज होती है, सपोज कोई भी HR मैनेजर है XYZ कंपनी का, उसके जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके सुपीरियर जो मैनेजर्स हैं, उनके किसी रिलेटिव या फ्रेंड का रेफरेंस दिया HR पर्सन को किसी भी करंट प्रोफाइल के लिए, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन नाउ इट इज़ एन एथिकल डायलेमा फॉर दैट HR पर्सन.
अब एचआर पर्सन को पता है कि ये पर्सन इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, बट बिकॉज वो रेफरेंस किसी हायर अथॉरिटी के थ्रू है तो उसको वहाँ पे हायर करना पड़ेगा। एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एचआर को उस पर्सन को हायर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी, he will he will not be able to contribute in the profit or in the goal achievement of the organization. But these are some ethical dilemmas that HR persons face. The second is if the fake credentials submitted by a job applicant, अब किसी जॉब एप्लीकेंट ने अपने फेक क्रेडेंशियल्स जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया या एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाया, अब वो फेक सर्टिफिकेट्स लगा दिए, although he is having all the capabilities, but he has presented the fake credentials. So now it is an ethical dilemma for the HR personnel कि जिस एम्प्लॉय ने फेक credentials लगा के अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, although he is working very good, तो जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकालना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट इज the discovery that an employee who has been with the organization for some time is skilled and has established a successful record had lied about his educational credential. So the same example I have given above कि कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, he is very talented and working very well with the organization, he is having a very successful record, but he has presented his faulty educational credentials. So at this time the HR will continue with that employee, or he will fire that employee for the organization. So these are some ethical dilemmas faced by the HR personnel while doing the recruitment and selection. So the next is cash and compensation plans. So when we are talking about it, समटाइम्स किसी अच्छे एम्प्लॉय को, किसी अच्छे परफॉर्मर को रिटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर्स को अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड कर रहा है तो वो एम्प्लॉय डेफिनेटली स्विच कर देगा, और एक अच्छे परफॉर्मर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोक के रखने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। बट जब आप ऐसा कर रहे हो उस टाइम पे आपने क्यों सैलरी को बेसिक सैलरी के लेवल से बढ़ाया? हो सकता है जो बेसिक सैलरी का बेसिक पे का ग्रेड हो उससे ज़्यादा आपको सैलरी इन्हांस करनी पड़े। सो एचआर मैनेजर को वहाँ पे जस्टिफिकेशन देना पड़ता है क्योंकि क्यों हमने ये किया। नेक्स्ट इज इफ इंक्रीज इज द ग्रेटर द एचआर हैव टू रेज सम पोजीशंस टू हायर ग्रेड्स। अगर आपने किसी पोजीशन के लिए बेसिक सैलरी के ग्रेड को इंक्रीज किया है तो आपको उस पोजीशन को दूसरी कैटेगरी में हायर ग्रेड वाली कैटेगरी में शिफ्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 ग्रेड्स हैं, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ग्रेड बी की जो बेसिक सैलरी रेंज है दैट इज फ्रॉम सपोज 50,000 टू 70,000। अब आपने किसी एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए वो 50,000 टू 70,000 के रेंज में वर्क कर रहा था, बट किसी कॉम्पिटिटर ने उसको 90,000 ऑफर कर दिया, तो आपको 1 लाख ऑफर करना पड़ेगा, देन ओनली ही विल रिटेन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि आपने बेसिक पे जो था पर्टिकुलर ग्रेड के लिए उस बेसिक पे को इन्हांस कर दिया, 70,000 से 1 लाख कर दिया, तो उस पर्टिकुलर जो पोजीशन है उसको आपको नेक्स्ट ए लेवल ए ग्रेड पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और इसके लिए एचआर मैनेजर्स को जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। These are the examples of the ethical dilemmas that HR persons actually face while performing all these activities. These all are the practical examples. The next is executive perquisites. अब फॉर एग्जाम्पल जो टॉप मैनेजमेंट है उसका प्रेशर है एचआर मैनेजर के ऊपर, दे आर कंटिन्यूसली सेइंग टू इंक्रीज देयर बोनसेस और देयर एक्स ग्रेशिया एंड एक्स्ट्रा पेमेंट। टॉप लेवल के अगर आप पेमेंट को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको मिडिल लेवल को और बाकियों को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि The next is performance management.
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको ईयरली बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस पे पूरे ईयर में आपने कितना परफॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू सेट क्राइटेरियाज, उसमें आपने कितने परसेंट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स को आपने कितने परसेंट अचीव किया, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है और उसी बेसिस पे परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को. इट कैन बी प्रमोशन, इंक्रीज इन योर सैलरी. सो the dilemmas, ethical dilemmas came when HR managers have to assign the higher rates to employees who are not deserving them. It is generally it is based on some unrelated factors like closeness to the top management. अब जो एम्प्लॉयज़ टॉप मैनेजमेंट से बहुत क्लोज हैं उनके लिए अगर कहा जाता है HR मैनेजर को आपको इनकी सैलरी पे ज़्यादा इंक्रीमेंट लगाना है, अगर आपको सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा करना है या इनका प्रमोशन भी करना है सैलरी इंक्रीमेंट के साथ, बट दे आर एक्चुअली नॉट डिजर्विंग. सो अब HR मैनेजर के सामने ये एथिकल डायलेमा है कि अगर हम एथिक्स की बात करते हैं, वर्क प्लेस एथिक्स की बात करते हैं, तो सेम रूल और सेम रेगुलेशंस होने चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ के लिए. अब एक एम्प्लॉय के लिए जो इंसेंटिव का क्राइटेरिया है वही सबके लिए होना चाहिए. बट यहाँ पे डायलेमा तब क्रिएट होता है जब टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद कुछ एम्प्लॉयज़ जो उससे टॉप लेवल मैनेजमेंट से बहुत क्लोज हैं उनके लिए उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर देते हैं. तो HR मैनेजर को एक्चुअली करना तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही पड़ता है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वर्किंग अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. द नेक्स्ट इज सम एम्प्लॉयज़ are given the low rates despite their excellence performance on the basis of factors like the caste, religion and not being loyal to the appraiser. अब कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो अगर आपको मैनेजर आपको पसंद नहीं करता है, अगर किसी एम्प्लॉय को सपोज मेरा मैनेजर मुझे पसंद नहीं करता है, आई एम डूइंग 100% एफर्ट्स. With all the efforts and all the skills and the abilities I am doing my work, but still because my manager don't likes me, maybe our religion is different, he belongs to another religion and I belongs to different. So because of these reasons when the managers try to behave unethically, they actually behave unethically and discriminate between the employees. So this actually creates the problem for the HR managers. Next is privacy issue. Although employee is working in the organization, he always supposed to be the very dedicated towards the organization, but still employee is having a personal life too, and the professional and personal life of employee should be separate and employer should not interfere in this. But in the era of information technology, employers try to fetch the computer files of the employees, they try to fetch the search history of the employees and so many things. So in this way they actually try to breach the privacy of employee and they also breach the trust of employee. जब एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसकी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर ना करो, ये एथिकल नॉर्म्स हैं. ऑर्गेनाइजेशन अगर एथिकल बिहेवियर की बात करें तो इट शुड नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल लाइफ ऑफ एम्प्लॉय. बट ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ की सर्च हिस्ट्रीज़ को फाइंड आउट करना, उनकी कंप्यूटर फाइल्स को एक्सेस करना, कुछ ऐसे क्लोज सर्किट कैमरास लगाना, लाइक ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे एम्प्लॉय की प्राइवेसी को बहुत हार्म होता है एंड दिस इज़ नॉट द एथिकल प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड हेल्थ. अब ऐसे अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का नेचर ऐसा है जो बहुत हैजार्डस है नेचर में, एम्प्लॉय की सेफ्टी और हेल्थ को अगर उस काम से हार्म हो सकता है, तो इस सब को इंश्योर करने के लिए एम्प्लॉयज़ को एक सेफर साइड प्रोवाइड करने के लिए अगर कुछ ऐसे नॉर्म्स, कुछ ऐसे रूल्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कि अगर एट द टाइम ऑफ डूइंग वर्क एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पे अगर एम्प्लॉय को कोई भी की सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द हार्म. बट एथिकल डायलेमा तब क्रिएट होता है जब HR मैनेजर्स एवरीवन नोज दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग,
दे शुड पे द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, बट ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट वो कंपनसेशन देने से डिनाई कर देता है. So now it is dilemma for the HR manager, because the HR manager have to handle the employee who is asking for the compensation. So these were all the ethical issues that an HR manager face while performing all the activities of HR. If you are having any query, just ask me in the comment box section, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.